Good morning, everyone. We already Thanks, discussing Vaishnav. the graphs of the functions. So we'll continue with the graph of certain functions in today's class, followed by the operations on the functions. Consider this question. Draw the graph of the following function. Y minus 3 equal to x plus 2 whole square. Here I am going to make use of an idea of shifting of origin, which in detail will be studied in straight line chapter second term. But as I already have mentioned, the concepts are very much interrelated, so I am going to make use of that concept here itself. I'll explain that via this example. So if you note carefully, I need to graph this function, and if I consider and suppose this is capital Y and this x plus 2 is capital X, my equation reduces to what form? Capital Y is equal to capital X square, and recall y equal to x square. Y equal to x square we already have graphed. Can anyone tell me what is the shape? Yeah. So that's basically a parabola. So this shape, the example which I have just considered, this is similar to a parabola. Just that what will happen? I mentioned a term shifting of origin. So what is happening? You put this is equal to 0, look at the top, and put this is equal to 0. So this gives me small y as 3 when this is 0, and when this is 0, I will get x is equal to minus 2. So what will be our x comma y? That will become minus 2 comma 3. Or shifting of origin concept says origin is shifted at this particular new point. What does that mean? Look at the graph. This is the point 0 0 origin, and locate the point minus 2 3. Minus 2 comma 3 is somewhere here, right? Imagine a situation, if you drag axis remains the same, you drag the graph in such a way that this point 0 0 coincide with minus 2 comma 3. Can you imagine the graph? Oh, sorry, the graph will be somehow have a shape similar to this. क्या चले जाएगा? Say this and this. A very parallel graph, बिल्कुल पैरेलल आप इमेजिन करिए, इसका ग्राफ जो है वो शिफ्ट होकर ये वाला ग्राफ वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगी माइनस 2 कॉमा 3 पर, एंड इट विल ड्रैग लाइक दिस. सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन y minus 3 equal to x plus 2 whole square, which is your final required answer. I know the idea is little bit tricky. तो एक एग्जांपल मैं यहीं पर और ले रहा हूं. Let's say we need to graph y plus 2 is equal to x minus 3 का whole square. So what I am going to do? Put this is equal to capital Y and this is equal to capital X. The equation will similar to y equal to x square, and then you just put those linear as equal to 0. दोनों linear 0 रख दिए. It gives me y as minus 2 and x as 3. तो एक्चुअल में x कॉमा y ये आ गया 3 कॉमा minus 2. So what I am going to do? There is no need to consider the graph of x square. I am now clear that the graph will be resembled to y equal to x square. Just that where is the point 3 comma minus 2?
3, -2 कहीं यहां होगा। बस आप इस पॉइंट से अपने ग्राफ को इस तरह से बना दीजिए। शेप का हमें आइडिया है ही पैराबोला का कि वो ऐसी कोई शेप जाने वाली है। सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। Check out this question. Draw the graph of the following function. Y is equal to mod x minus 4 and then minus 3. Very first thing, इससे y plus 3 कितना आ गया? ये minus 3 को इधर ले आए, mod of x minus 4। और अब वही सोचिए क्या करा हमने, इस लीनियर को कैपिटल X मान लिया, y plus 3 को कैपिटल Y। So our equation will reduce to y is equal to mod x। ये y था कैपिटल Y, ये कैपिटल X, तो y इक्वल टू mod x आ गया। एंड व्हाट काइंड ऑफ अ शेप y इक्वल टू mod x? एनीवन? V shape. यस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x, जो अब हमें याद है डायरेक्टली ऐसी शेप है। जस्ट दैट व्हाट आई नीड, वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो न्यू वर्टेक्स विल बी, उसके लिए क्या करना है, लीनियर इसे 0 कर दो और इसे 0 कर दो। तो इसका मतलब 4, yes, 4, -3। So look at the graph. This is origin and 4, -3 will be somewhere here. That everyone can imagine. ये वाला पॉइंट होगा। और अब इस पॉइंट से जस्ट व्हाट यू रिक्वायर, आप यहां से बिल्कुल अपने ग्राफ के पैरेलल इमेजिन करो कि आप ये इसके पैरेलल ये लाइन निकल गई और इस लाइन के पैरेलल ये निकल गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर न्यू फंक्शन y इक्वल टू mod x minus 4 minus 3। Let us consider one more question very similar, ताकि और अब आइडिया लग जाए आपको। Let's say the question is y minus 1 is equal to 2x minus 3। और मॉड वाला क्वेश्चन ले रहा हूं ना, तो यहां मॉड लगा देता हूं। That's it। चलिए ये क्वेश्चन है, तो चेक करिए क्या करना है हमें। लीनियर एक्सप्रेशंस को इसे कैपिटल Y कह दिया और इस लीनियर को कैपिटल X। तो y इज इक्वल टू mod x, राइट। और वर्टेक्स कहां शिफ्ट हो जाएगा? एनीवन? लीनियर्स को 0 करिए, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है इसको 0 करने के बाद? 3/2। 3/2। और y आ जाएगा 1। तो बस अब आपके पास there is no need to draw the actual graph of mod x। आप डायरेक्टली क्या सोचेंगे, वेयर इज द पॉइंट 3/2, ये मान लो चलो 1 है 2, राइट। तो ये हो गया 3/2 और ये हो गया 1। तो दिस इज द पॉइंट 3/2, 1। और अब इस पॉइंट से आपको पता है आपका ग्राफ है वी शेप्ड, लाइक दिस योर रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। दैट्स इट। दो पॉसिबिलिटीज इसमें बहुत ज्यादा हैं, बट इन आवर सिलेबस हम लिमिटेड इसी तरह के क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। चेक आउट दिस क्वेश्चन, y equal to x cube plus 2। Idea is
सबसे पहली बात आइडेंटिफाई करो y माइनस टू इज एक्स क्यूब लिखा है, और एक्स क्यूब को मैं x माइनस जीरो का क्यूब लिख सकता हूं। इसे माना कैपिटल Y, ये हो गया कैपिटल X। So my equation actually reduces to y is equal to x cube। शेप कैसी होती है y इक्वल टू एक्स क्यूब की? सोचे ध्यान से, बताया था ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। एक्चुअल में अगर थोड़ा सा और बेटर दिखाना चाहूं तो वो कुछ एग्जैक्टली ये ग्राफ आता है। ठीक है, तो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपका न्यू वर्टेक्स कहां चला गया इस ग्राफ का? एनीवन? न्यू वर्टेक्स विल बी एट x0 0 y2 minus 2 0,2 यस 0,2। इसे जीरो करा और इसे जीरो करा, राइट? तो 0,2, जस्ट दैट वेयर इज द 0,2 पॉइंट? हम ये देखेंगे, ये रहा 0,2। और अब आप सोचो इस ग्राफ के पैरेलल ग्राफ जाना है, दैट्स इट। तो आप इस ग्राफ के जब पैरेलल ग्राफ एक ड्रॉ करेंगे तो समझ आ जाए, ये थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा, ये ऐसे जाकर बिल्कुल इसके पैरेलल शेप आ जाएगी। वो थोड़ा स्मूथनेस यहाँ प्रॉपर बनी नहीं है, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट दिस। बिल्कुल इसके पैरेलल शेप आपको निकाल देनी है। यस, सोचिए जरा अब इसे। 1,0 ओके, ठीक है। बट अब इसमें सबसे पहले अब आपको ग्राफ याद होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सर y is equals to x। तो चेक करिए, सबसे पहला काम आपने इसे y माइनस जीरो कहते हुए लिख दिया था, और इसे कहा से कैपिटल Y, दिस इज कैपिटल X। तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो न्यू वर्टेक्स जो एक तरह से हमारा रहा वो कहाँ आ गया था? 1,0। सो द आइडिया इज, एक तो ये ग्राफ में मैंने करेक्शन करवाई थी अगर आपको याद हो, ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, यहाँ ये क्लोज्ड आता है, ये क्लोज्ड है और यहाँ होल है। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। थोड़ा सा करेक्शन के साथ याद रखिए, ये ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब क्या हुआ, हमने इसको ही अब आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वो किस तरह से हो रहा है? 1,0, वेयर इज दैट पॉइंट? ये वाला पॉइंट है 1,0। इसका मतलब मेरा जो ओरिजिनल ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ यहां से शुरू हो रहा था, मान लो ये 0,0 से था, तो आपने वर्टेक्स को 1 यूनिट राइट साइड में, 1 यूनिट राइट साइड में ड्रैग करा है। व्हाट डज दैट मीन? हर एक लाइन जो थी मेरी वो 1 यूनिट राइट में ड्रैग हो जाएगी। तो ये वाली लाइन को अगर आप देखो, ये 1 यूनिट राइट में आकर कैसे दिखाई देगी? ऐसे हो जाएगी। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? 1 यूनिट राइट में ड्रैग होकर यहाँ ये और ऐसा होल आ जाएगा। ये वाली लाइन जब जाएगी 1 यूनिट राइट में, व्हाट डू यू थिंक? तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये लाइन आगे गई तो ये हो जाएगा। ये वाली लाइन जब 1 यूनिट आगे जाएगा, ये ग्राफ, ये 1 यूनिट आगे कर दो लाइक दिस, ये 1 यूनिट आगे कर दो लाइक दिस, एंड सो ऑन। सो इमेजिन अ सिचुएशन कि जब मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ मैं बनाऊं ही ना, और मैं डायरेक्टली 1,0 के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाना शुरू कर दूं, तो आई विल गेट द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। What is the domain and range of this function? What is the domain?
एंड व्हाट इज अ रेंज? Real numbers. रेंज कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से ही हमें वैसे अगर मैं कहूं तो पता होता है, इसकी रेंज जो है वो सिर्फ इंटीजर्स होती है. Integers, हाँ. So in our case also it will remains the same, integers only. तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाने को नहीं आया, सिंपल है, हल्का सा मॉडिफाई करा और आपसे रेंज पूछ लिया. तो रेंज ऑफ, अगर आपको मेन फंक्शन याद है तो आप शिफ्टिंग वालों की भी रेंज इजीली बता पाएंगे. लाइकवाइज इन प्रीवियस केसेस अगर मैं बात करूं तो हर एक फंक्शन की रेंज वही रही थी इन जनरल जो पिछले क्वेश्चंस में रही थी, ग्रेटेस्ट जो भी आपका ये रहा था. बट इस केस में अगर मैं रेंज की बात करूं, एनीवन, क्या फर्क पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज क्या हो रही है? Some real numbers greater than -2. दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. रेंज की डेफिनेशन, व्हाट वैल्यूज y कैन टेक. आप सोच के देखिए, y मेरा यहां होता है, y ग्राफ से पता नहीं चल रहा कि 3/2 या उससे ऊपर ही वैल्यूज जा रही हैं. ग्राफ मेरा, ये लाइन कौन सी मैंने बताई है आपकी, y इक्वल टू 3/2. क्या ग्राफ मेरा इससे नीचे एग्जिस्ट कर रहा है? नीचे की तरफ ग्राफ है ही नहीं. ग्राफ इज एग्जिस्टिंग ओनली अबव दिस 3/2. So the range of this function is this. So this graphical visualizations play a very, very important role. You need to think logically. Similarly, इस तरह से इसकी रेंज रियल नंबर्स ओनली, ग्राफ देखते ही पता चल रहा है. वाई एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है थोड़ी, बट ऊपर भी इंफिनिटी जा रहा है, नीचे भी इंफिनिटी तक ग्राफ मेरा जा रहा है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. Check this out. Y equals under the root 16 minus x square. For a sake of calculation and simplicity, let me square this. तो y square आ गया 16 minus x square. Rearrange, x square plus y square is 16. 16 can be written as 4 square. Now, again in second semester we will be talking about circle, और उसमें क्या होता है ये चीज मैं थोड़ा सा क्विकली बता देता हूं. x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is actually h comma k and whose radius is actually r. तो ये एक सिंपल सर्कल है जिसका सेंटर है हमारा h कॉमा के एंड रेडियस जो है वो है r यूनिट्स. सो एज ऑफ नाउ यू नीड टू लर्न दिस बेसिक थिंग. डिटेल में हम बाद में स्टडी करते हैं, but this is needed over here. So look at our equation. Can anyone tell me the center of this circle? ये वाला जो equation है, anyone? Center of this circle is, the radius of this circle is 4. yes. कंपैरिजन ही तो करना है इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ. यस, और सेंटर सोचना तो और आसान था.
ये भूल जाते हैं हम, ये बेसिक चीज है। y को मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सो दिस इज दी एक्चुअली सर्कल with center 0 0 and radius 4 यूनिट्स। अब मैं इसे जरा ड्रॉ करता हूं। सिंपल सिचुएशन है ये, आप सोचिए एक्सेस है, सेंटर रखा 0 0, आप कंपास ओपन कर लीजिए 4 यूनिट की, तो आप जस्ट ड्रॉ करेंगे सर्कल। तो एक बेसिक एक आइडिया लग रहा है कि वो यहां से इन 4 पॉइंट से क्रॉस करेगा, 4 0 माइनस 4 0, ऊपर से 0 4 और नीचे से 0 माइनस 4। लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल। तो आप जब कंपास से कर रहे हैं ऑब्वियसली नीटनेस और एक्यूरेसी कहीं ज्यादा आने वाली है। ये इस तरह का सर्कल आ जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। बट हमें किसका ग्राफ बनाना था? इस इक्वेशन का। नोट केयरफुली, y एक्चुअल में तो ये था, मैंने अपनी इक्वेशन को इजी बनाने के लिए स्क्वायरिंग किया था, बट अदरवाइज y इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ये है यहाँ पर स्क्वायर रूट, एंड इन 8th क्लास इटसेल्फ यू हैव स्टडीड, एक स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इजंट इट? स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर अब आप इस ग्राफ को देखें जो मैंने सर्कल बनाया है, यहां इस पोर्शन में y नेगेटिव है, इस पोर्शन में y नेगेटिव है, तो इस पोर्शन का जो ग्राफ आ गया आप उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये मेरे ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एंड इट गिव्स मी द ग्राफ ऑफ द रिमेनिंग, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लाइक दिस, वेयर दिस इज 0 0, दिस इज माइनस 4 0, दिस इज 4 0, ये, और ये लाइन जा रही थी ऐसे, और ये कितना था 0,4। So this is the actual graph of y equal under the root 16 minus x square. Sir, y 16 minus x square whole under root is greater than 0. Greater than or equal to 0. Yes, sir. Why it is so? I think, sir, under the square root, it should be minus. Minus square root of 4 कितना होता है? 2. 2. What is square root of 16? 4. क्या कभी भी हम ऐसा कहते हैं कि ये प्लस माइनस होता है? ये गलत है। तो आपको पता है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये होता है। और पॉजिटिव यही तो यहां हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर, इट हैज टू बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, विच इज वेल डिफाइंड। इसीलिए y मेरा पॉजिटिव है, और y पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? ईदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाट डज दैट मीन? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए आई हैव टू रिमूव दैट पोर्शन, और ग्राफ लेना होगा सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट वाला, which is the graph of our required function. Can anyone tell me the domain of this function? Graph को देखकर, what is the domain? Sir,
Any real number between -4 and 4. गुड। सी, डोमेन का मतलब क्या था? व्हाट वैल्यूज x कैन टेक। यहां पर x है आपका, तो x क्लियरली -4 से 4 के बीच में जा रहा है, -4 से 4 के बीच में। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 0 to 4. गुड। आप चेक करिए, रेंज का मतलब व्हाट वैल्यूज आंसर कैन टेक, माने ऑन y एक्सिस। क्लियरली y एक्सिस के ऊपर 0 से 4 तक हम जा सकते हैं। योर रिक्वायर्ड रेंज। So domain and range algebraic method is different. इसी क्वेश्चन का अगर मैं डोमेन रेंज निकालना चाहता यूजिंग algebra, the method is different. But I would generally recommend if you can graph the function and have a good visual skills. सिर्फ देखना है, समझना है और कुछ नहीं है। Believe me on that. अगर ग्राफ बेसिक आपको बनाने आ गए, ये आगे जो हम फर्दर बात करेंगे 12th में भी, नॉट ओनली इन 11th, 12th में भी वी हैव द आइडिया ऑफ द कैलकुलस। वो बहुत आसान लगती है व्हेन वी आर एबल टू विजुअलाइज दैट सिचुएशन। तो ग्राफ के ऊपर इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। मोस्टली स्कूल्स के अंदर ये आउट ऑफ कोर्स कह के बिल्कुल नहीं डिस्कस करवाते हैं, बट आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इज नॉट ओनली इन 11th बट इन 12th एज वेल। एनीवे, मैंने ऐसे स्पेस रखा था कि कोई ग्राफ और अगर मेरे माइंड में आ गया तो एक का अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूं, साइन एक्स। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिटेल में हम इनके ग्राफ की बात बाद में करने वाले हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि साइन एक्स एक ऐसा आपका ग्राफ फंक्शन है जो -1 से 1 के बीच में जिसको हम ड्रॉ करते हैं, और वो किस तरह से जाता है। मान लो ये 2 पाई है, ये 0 है, दिस इज इसकी मिड वैल्यू, फिर ये इसकी मिड वैल्यू और ये फिर इसकी मिड वैल्यू। एंड हाउ वी गेट दिस ग्राफ? अभी के लिए सिर्फ बेसिक शेप याद करनी है, कैसे आया है वी विल टेक दैट लेटर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ये π/2 के ऊपर हमें पता है आंसर 1 होता है, साइन 0 इज 0, फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि साइन पाई इज 0, 3π/2 के ऊपर आंसर इज -1 एंड सो ऑन। सो लर्न द बेसिक शेप। अब अगर मेरे पास एक फंक्शन दे दिया है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स के केस में क्या हो जाता है, स्क्वायर आ चुका है। तो स्क्वायर से फर्क सिर्फ क्या पड़ता है कि जो मेरी वैल्यूज नेगेटिव होती वो पॉजिटिव में आ जाती हैं। क्या मतलब कि अगर ये मेरे पास मान लो -1 1, ये मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ है, स्क्वायर जब मैंने किया तो व्हाट विल हैपन, दिस इज से पाई, दिस इज π/2, दिस इज से 3π/2। पॉजिटिव वैल्यूज तो पॉजिटिव ही रही लाइक दिस, बट जो ग्राफ मेरा ये जा रहा था, नेगेटिव आंसर आ रहा था, ये वैल्यूज नेगेटिव है यहां पर, बट स्क्वायर है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब यही वैल्यूज फिर यहां से पॉजिटिव होकर ऐसा ग्राफ दे देती है। तो दैट विल बिकम द ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है लाइक दिस, और साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ वो ऐसा ग्राफ लाइक दिस। तो दैट वी विल स्टडी लेटर इन डिटेल जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल आइडिया ऑफ ऑपरेशंस ऑन द फंक्शंस। जैसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
multiplication and division, same way addition of two real functions. Quickly check it out. f है function from some set x to r, g है from x to r, right? और this is the subset of real domain, माने x जो है वो आपका नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर या कुछ भी हो सकता है. Sum of two functions is simply defined and written like this, which is fx plus gx. सिंपल है, दो फंक्शंस की डेफिनेशन दिया है, यू जस्ट ऐड द डेफिनेशन, आंसर. सिमिलरली डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, दिस इज fx माइनस gx. मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर करा है, तो स्केलर माने कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू. अगर आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, हार्डली मैटर, अल्फा ऐसे आ जाएगा. और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस f इंटू जी, fx इंटू gx हो जाता है. डिवीजन और कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस f अपॉन g, ये क्या होता है? सिंपली fx अपॉन gx. ऑब्वियसली कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, नीचे जीरो नहीं आ सकता, तो gx कांट बी जीरो. कंसिडर दिस क्वेश्चन. आपको fx दिया है x स्क्वायर, gx दिया है 2x प्लस 1. These are two real functions. Find their sum, difference, product and division. तो check it out. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं अलग करना. ये है fx, ये है gx. What is f plus, एक मिनट, f plus g. Sum of the functions is सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा. इन दोनों को ऐड कर दिया, ये चलो एक फार्मूला बनकर आ गया, तो ये आंसर है. सिमिलरली f माइनस जी की जब हम बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा? fx माइनस gx. तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, आंसर. फिर मान लो आपसे पूछा है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को क्या कहा था? fx इंटू जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1. तो आप यही आंसर छोड़ दो और यू ओपन दी ब्रैकेट, वो आपकी चॉइस है. Your required answer. Quotient or division of two functions is actually fx upon gx, fx upon gx. But इसमें एक important चीज क्या हमें बतानी है? नीचे जीरो नहीं हो सकता. This is important. That is, x cannot be minus 1 by 2. तो minus 1 by 2 को छोड़कर the division of these two functions is defined. Yes, check out this question. fx दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, राइट? और दोनों आपके रियल फंक्शन, सिंपल बता दिया है. और अगर ये नहीं भी बताएं, इट इज आवर एजम्पशन. 11th 12th तक हम सिर्फ रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड देयर सम एंड सो ऑन.
तो nothing to discuss here. Quickly you can find out their sum. तो sum जब पूछा है, sum आप हमेशा किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, राइट? तो दैट मीन्स ये आपसे पूछा था और ये हो जाएगा x+1 और दूसरा फंक्शन ये है which is 3x - 2. Your answer. Similarly, you can go about defining everything. सिर्फ f/g में एक important चीज मैंने क्या बताई है जो याद रखनी है, fx/gx हो गया और fx/ ये आ गया gx. This is defined only when this is non-zero. That is, x should not equal to 3/2. उसके अलावा मेरा फंक्शन हर जगह डिफाइंड है. एनी डाउट टू एनीवन? So this is the question for your homework. f and g be the real function. f of x ये डिफाइन करा है, g of x ये डिफाइन किया है, right? You need to find their sum, their difference, their product. और यहाँ पर f का मतलब क्या है? Simply f of x into f of x की बात हो रही है, so hardly matter. तो f of fx अगर मुझे निकालना होता, so fx into fx का मतलब क्या हो गया? This into this, और ये क्या हो गया है? Simply x+2. Later we will be talking about the composition of two functions, जिसे हम fog and goff का नाम देने वाले हैं. That I will cover later. साथ में होमवर्क में लॉजिकल क्वेश्चन ये देखिए. फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन. सबसे पहली बात, आपको डेफिनेशन अगर याद नहीं है, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन? एनीवन? क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? दिस इज x only. Reciprocal function 1/x. 1/x. Now one can easily answer sum and difference. Similarly, find the product of identity and modulus. तो identity function हो गया x only. मॉडुलस फंक्शन हमें पता है ये होता है. नाउ यू कैन इजीली राइट डाउन एवरीथिंग, चाहे डिवीजन पूछ लिया जाए या कुछ और. सो कंप्लीट दिस वर्क इन योर होमवर्क. नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे, वहां जो नेक्स्ट 3 क्लासेस तक रहने वाला है, दैट विल बी अबाउट फाइंडिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और गारंटेड एक क्वेश्चन वहां से पक्का आपके एग्जाम में आएगा, और वो भी 3 मार्कर, द हाईएस्ट जो रहेगा. एनी डाउट टू एनीवन? इफ नॉट, you can now leave the class. Thank you and have a great day. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.